जागो रे देखे सारा मोरा रे भाई तमे गाफल हो के सोता जीरे तमे गाफल हो के सोता जी वीरा भाई सोवेंगे सोई रोवेंगे मोरा भाई गोरा नारा कहे ता पुकार जी गोरा नारा कहे ता पुकार जी वीरा भाई जुगारे जुगथी गुरा नर कहे तेरे आए तमे जिक्र करो मोरा भाई जी वीरा भाई गड़ी रे गड़ी गोरा कहे तेरे आए तमे मूरख काया नावचे तो जी मूरख काया नावचे तो जी खुदा हाज़िर माँ नजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीनदारों, पहले वेको के लिए मैंने मना कर दिया था। मेरा मना करने का रीज़न ये था, वजह ये थी कि मुझे ऐसा पता चला यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कमज़ोर है। और मैंने तजर्बा किया है कि जब भी हिंदी गुजराती में वाइज होती है तो बेचारे ये लैंग्वेज नहीं समझने वाले बच्चे या तो बोर होते हैं, या तो सो जाते हैं, या तो चले जाते हैं। लेकिन फिर मुझे कहने में आया कि नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन दूसरी जमात भी है जो इंडिया पाकिस्तान की है, छोटी है जमात तादाद के अंदर। और मुझे एक
واقعہ یاد آ گیا اور پھر میں نے طے کیا کہ نہیں میں کوشش کروں یہاں جانے کی، اور حضرت امام نے مجھے یہاں پہنچایا کچھ خدمتگاروں کی مدد سے اور حضرت امام کی دیا سے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو طریقہ بورڈ ہے نا، اس کا فرسٹ نیم تھا ریکریشن کلب انڈیا کے اندر، اور وہ ریکریشن کلب جب نام تھا اس کے بعد نام پڑا اسماعیلیہ ایسوسیشن، اور آج طریقہ بورڈ ہے۔ میرے استاد جیسے الوائز لوگ، سینئر الوائز لوگ کتنے خدا کی رحمت پہ پہنچ چکے، ایک دو حیات ہیں، الوائز رائے ابو علی صاحب بھی حیات ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس سے ایک بات سنی تھی میں نے، وہ بات یہ تھی کہ حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب بھی انڈیا آوے اور بامبے میں آوے کافی ٹائم رہتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کا مقام رہتا تھا، اور اس وقت یہ ریکریشن کلب میں آتے تھے۔ وہ کہاں پر ہے؟ بامبے میں کریم آباد کے اندر، جس کو کانڈی مولا کہتے تھے، آج بھی وہاں پر ہے ہمارے اطریب کی آفس۔ تو سلطان محمد شاہ وہاں آوے، آ کے اور الوائزوں کے ساتھ، طریقہ کے آڈینس کے ساتھ میٹنگ کرے اور پھر کوشچن آنسر ہوئے۔ ایسے ایک آڈینس کے اندر سرکار سلطان محمد شاہ بیٹھے ہیں، مہمانی ایکسپٹ کی، اور بعد میں سرکار سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں، پریزیڈنٹ کون تھے اس وقت؟ فرسٹ پریزیڈنٹ وزیر علی محمد مکلائی تھے۔ سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں کہ کتنے وائزین ہیں تمہارے پاس؟ سرکار اتنے وائزین ہیں، اتنے پروفیشنل ہے فل ٹائم، اتنے آنرری ہے، اور یہ سب بیٹھے ہیں ماں باپ۔ وہاں پوچھتے ہیں، سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں، آپ سب لوگ وائز کرتے ہو؟ ہاں سرکار کرتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہو وائز کرنے؟ تو کہا سرکار سب جگہ جہاں ہم کو حکم ہوتا ہے۔ تو ماں باپ ہنس کے پوچھتے ہیں کہ صرف بڑی تعداد کی جماعتوں میں جاتے ہو کہ چھوٹی تعداد کی جماعت میں بھی جاتے ہو؟ بولے نہیں ماں باپ، سب جگہ جاتے ہیں۔ اور وہ زمانے میں ایک حکم تھا مولا کا، آج وقت کے حساب سے چینج ہوا ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ جہاں اسماعیلی کے 4-5 گھر ہوتے وہاں بھی جاتے ہیں؟ ہاں ہاں جاتے ہیں ماں باپ۔ پھر فرماتے ہیں جہاں ایک گھر ہوتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں؟ ہاں جاتے ہیں۔ اور میں جب کراچی سے ٹرین ہو کے الوائز کی ٹریننگ لے کے انڈیا پہنچا 68 کے اندر، تو میں ایک گھر میں وائز کیا ہوں 5 جنے کے بیچ میں۔ وہ 5 جنے کو سامنے بٹھایا، میں یہاں بیٹھا ہوں، یعنی ہسبینڈ وائف ان 2 بچے۔ یہ ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں سرکار وہاں بھی جاتے ہیں۔ ابھی سنو، مولا فرماتے کیوں ہم تم کو اتنا دباؤ کے ساتھ فرماتے تھے، کیوں ہم نے اتنا زور دیا؟ اس لیے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، میرے کسی بھی روحانی بچے کو یہ ریزن نہ ملے کہ یا مولا ہم کو تو مذہب کی کچھ معلومات نہیں تھی، ہم کو تو اسپرچولیزم کی روحانیت کی کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ جماعت خانہ ریگولر آنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھی روحانی بچے کو یہ بہانہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، یہ ریزن نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم آپ کو فرمایا، مولا کہتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو فرمایا۔ اور اس کے ریفرنس میں آپ کو ایک فرمان دوں، پرنٹڈ فرمان، جو کل میں نے ڈالاس کے مین خانے میں ایک کتاب کا نام لیا تھا، گوہر رحمت کر کے فرمان کی کتاب ہے، گجراتی میں، انڈیا کا پبلیکیشن ہے۔ اس میں ایک فرمان ہے کہ تم کھوجے ممنے بدخشانی عرب اسماعیلی خالو اسماعیلی، ایک ایک کا نام لیا ہے، ابھی سب ایک ہی ہے،
लेकिन हमारे पेशे के हिसाब से पीर ने हमको ये लक़ब दिए थे. नाउ वी आर ऑल इस्माइली, वी आर ऑल स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सब हाज़िर इमाम के हम रूहानी बच्चे हैं. लेकिन सुल्तान मुशाह एक याद दिहाने के लिए कि तुम जितने भी हो, जहां के भी हो, जो भी मुल्क के हो, मौला फरमाते हैं तुमको कोई बहाना नहीं मिलेगा. दूसरी कौम वालों को तो बहाना मिलेगा कि हमको कोई दिखाने वाला नहीं था. ये प्रिंटेड फरमान है. तो इस इमाम के हुक्म के मुताबिक जो हमारे ऊपर जवाबदारी डालने में आई, तो मैं आ गया इस छोटी तादाद की जमात के अंदर मौला का मैसेज पहुंचाने. मौला का पोस्टमैन बन के हाज़िर इमाम का पैगाम लाया हूं, और खाली वो पोस्टमैन से तुम्हारे उसमें डाल के चले जाएगा पोस्ट बॉक्स में. मैं तो वो एनवेलप खोल के और तुमको रीड करके बताता हूं कि ये मैसेज है मौला का, ये पैगाम है. फिर मैं छूट गया कि मौला मैं तेरा पैगाम पहुंचा के आया था, जितनी मेरे से हुई कोशिश. ठीक है, अब मैं 3 फरमान तुम्हारे सामने रखता हूं. एक फरमान है 1963 का पेरिस का, एक फरमान है 1996 का माडागास्कर का, और एक फरमान है पोर्चुगल का, लिस्बन का. पेरिस का फरमान. तीनों फरमान के अंदर आप तवज्जो देना, एक ही एसेंस बार आता है. सुल्तान शाह करीम फरमाते हैं, टुडे I would first of all like to emphasize to my Jamaat in Paris the need and the necessity for all of you to be regular in your prayers. Fear. I don't want you forget that prayers is basic of your spiritual life. मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये भूल जाओ कि दुआ इबादत है, वो तुम्हारी रूहानी जिंदगी की बुनियाद है. माडागास्कर. मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, जिंदगी के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे मुल्क के तरफ की जवाबदारी, तुम्हारे देश के तरफ की जवाबदारी, और दूसरा तुम्हारी रूहानी जिंदगी की फराइज और तुम्हारी जो दूसरी इटर्नल अबदी जिंदगी है, उसकी तैयारी करने के लिए. लिसन केयरफुली और उसके ऊपर थिंक करो. तुम्हारी एक अबदी इटर्नल लाइफ है, जिंदगी है, उसकी तैयारी करने के लिए तुम्हें यकीनन तुम्हारी दुआ, बंदगी और जमात खाने की हाजिरी के अंदर पाबंद रहना ही चाहिए. खानावदा. नवलास फरमान 96 का, उसकी कॉपी आ गई यहां पर. मुला फरमाते हैं लिस्बन जमात खाने का जो फाउंडेशन डालने के, मुला फरमाते हैं, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वर्षों में तुम यहां लिस्बन के अंदर एक नया जमात खाना पाओगे, जैसे हमने वेको ने पाया. राइट, माशाअल्लाह, छोटा सा है, कम मगर खूबसूरत है. फिर मौला फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है कि सबसे अव्वल तो तुम्हारे में से हर कोई जमात खाने की हाजिरी के अंदर तुम पाबंद होने का चालू रखोगे. सबसे अव्वल तो मौला कहते हैं मुझे उम्मीद है कि जमात खाने की हाजिरी में तुम पाबंद रहने का चालू रखोगे. पहले जमात खाना नहीं होता था, या किसी के घर में हम बैठते थे तो मेरे जैसे को रीजन मिले कि भाई क्यों तुम जमात खाना नहीं है, नहीं यार मजा नहीं आता. ठीक है, अब जमात खाना मिल गया. तो मौला कहते हैं लिस्बन के अंदर तो था छोटा जमात खाना, मैं जाके आया था वहां. तो मौला कहते हैं कि तुम कंटिन्यू रखोगे, और तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हर एक इंसान का एक जिस्मानी बाजू है और एक रूहानी बाजू है. एक फिजिकल साइड है और एक स्पिरिचुअल साइड है. मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, जो स्पिरिचुअल साइड है
جو روحانی بازو ہے وہ ابدی ہے, اٹرنل ہے, اور انسان کا یہی ایک حصہ ہے جو اننت ہے, جو اٹرنل ہے. اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ جماعت خانے کے اٹینڈنس کے اندر تم برابر حاضری دو. It is the only part of the individual which is eternal. So attend Jamaat Khana regularly. Khanavadan, Khanavadan. Salawat par Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. ایک ڈسپلن ویسٹرن کنٹری میں زیادہ ہے اور یہ ہمارے یہاں بھی آتے جاتی ہے, بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر, اور یہ اچھی ڈسپلن ہے, اچھی عادت ہے. کیا آتے جاتا ہے کہ ہر چیز پلاننگ سے ہو, ہر چیز پلاننگ سے ہوئے. بھائی ویکیشن آ رہا ہے, کہاں جانا ہے؟ انڈیا جانا ہے, پاکستان جانا ہے, کینیڈا گھومنے کو جانا ہے, تو ہم پلاننگ بنائیں گے. ٹھیک ہے, پلاننگ کیا بنائیں گے؟ کون سے مہینے میں جانا ہے؟ 4 مہینے کے پہلے تیاری کرتے ہیں بھائی, یہ مہینے میں. آلرائٹ, کہاں ٹھہریں گے؟ یہ ہوٹل کے اندر. چلو بکنگ ڈال دو. کون سی فلائٹ میں جائیں گے؟ کس کے فیئر تھوڑے سستے ہیں؟ فوراً ہم فائنڈ آؤٹ شروع کریں گے اور پھر ہم ایئر کی بکنگ ڈال دیں گے. ہر چیز پلاننگ سے. بچے جب ایگزام دیتے ہیں نا, آپ کے یہاں تو کیا کہتے ہیں پتا نہیں, لیکن انڈیا پاکستان میں فرسٹ گریڈ, سیکنڈ گریڈ, تھرڈ گریڈ, 11 گریڈ, 11واں تک, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایس ایس سی. اور ایس ایس سی کی ایگزام دیتا ہوگا 11 گریڈ کی, تو سوچتا ہوگا بچہ, اسٹڈیز کرتا ہوگا نا کہ میں اس میں پاس ہوں گا تو کالج میں ایڈمیشن لوں گا, اتنا پرسنٹیج آئے گا تو میں آرٹس میں جاؤں گا, اتنا پرسنٹیج آئے گا تو میں کامرس میں جاؤں گا, اتنا پرسنٹیج آئیں گا تو میں سائنس میں جاؤں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا. اور ایسے وہ دماغ کے اندر پلاننگ بنانا شروع کر دیتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی شادی کا پرسنگ آئے کہ بھائی شادی ہے, کبھی ہے؟ بولے آنے والی فیبروری میں. چلو چلو تیاری کرو, جلدی کارڈ چھپاؤ, کتنے لوگوں کو بلانا ہے, کون سے ہال میں رکھنی ہے, کون سا کھانا کرنا ہے, کتنا کھانا کرنا ہے, ایپیٹائزر میں کیا کیا رکھنا ہے, برابر ہے, کتنا داگینہ بنانا ہے. 4-5 مہینے پہلے سے پلاننگز ہو جاتے ہیں. اور یہ عادت اچھی ہے, یہ عادت اچھی ہے کہ جو کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا وہ سسٹمیٹک ہوتا ہے, وہ برابر ہوتا ہے, اس کا رزلٹ برابر آتا ہے. لیکن جہاں آخرت کی بات آتی ہے, جہاں روح کی بات آتی ہے, جہاں جماعت خانے کا اٹینڈنس کی بات آتی ہے, جہاں دعا بندگی کی بات آتی ہے, تو کیا کہیں گے پتہ ہے بھائی وہاں پلاننگ تو હવે અને મુકે ટાઈમ મિલનો તડે બી ન શુક્રવાર જો ના تو وہاں پلاننگ کی بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پلاننگ کی بات نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اچھا ابھی یہاں میں معافی کے ساتھ پوچھتا ہوں, ٹیسٹ نہیں لیتا, میں خالی ایسا پوچھوں بھائی آج صبح کی دعا کتنے نے نہیں پڑھی؟ جماعت کھا لینے کا نہیں بولتا, اونلی دعا. آج صبح کی دعا کتنے لوگوں نے نہیں پڑھی؟ تو کئی کے ہاتھ اوپر رہیں گے. بیت الخیر کا بول لیے کتنے لوگوں نے آج بندگی کی صبح گھر پہ بیٹھ کے؟ میں نے بھی نہیں کیا, رائٹ. تو اس میں پلاننگ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک کلاس میٹ, ہم لوگ اسکول میں ساتھ میں پڑھتے تھے, ناؤ وی بہت بڑا بزنس مین ہے, اتنا سسٹمیٹک لائف ہے اس کی, ابھی بھی برابر 8:30 بجے ڈائننگ ٹیبل پہ آ جائے. ہماری بات چیت ہوئے تو مجھے بتاوے پورا پروگرام, بریک فاسٹ آ جائے ٹیبل کے اوپر, رائٹ. ذرا کچھ آگے پیچھے ہوئے تو عورت کو پھر تو ڈانٹ ڈالے, 8:30 میرے کو فلانی وہ ٹرین پکڑنے کی ہے 9:40 کی, رائٹ. بریک فاسٹ آئے برابر بھائی اتنے بجے کی بس پکڑنی ہے, 9:40 کی ٹرین پکڑنی ہے, اور پہنچ جاوے اپنے شاپ ہے, بڑی اس کی دکان ہے, اور برابر 11 بجے اس کے دکان کا لوگ کھلے. شام کو برابر دکان بند کرے, جو ٹرین وہ روز سوچتا ہے اسی ٹرین کے اندر برابر آوے, اتنے بجے گھر پہ پہنچ جاوے, اور
डिनर रेडी हुए टेबल के ऊपर, ठीक है, हर चीज सिस्टमेटिक. मुझे कहता है कि यार जिंदगी अंदर આપણે પાછી ડિસિપ્લિન तो होनी જ खपे. हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. फिर मैं पूछा कि माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन यार, कितनी सिस्टमेटिक लाइफ है तेरी. तो रूह के बारे में कुछ दुआ बंदगी जमात खाना नहीं यार, उसमें मैं बराबर हाँ पढ़ता हूं. बोले क्यों भाई, उसमें तो सिस्टमेटिक लाइफ है, इसमें क्यों नहीं. तो क्या कहेंगे, अरे यार मैंने कहा खुदा ना करे मौला तेरे को लंबी जिंदगी देवे, 150 साल का करे तंदुरुस्ती भरेली, पर 150 साल के बाद भी टाइम आवे तो फिर रूह का क्या होगा. इसमें जो तू टाइम नहीं देगा तो प्लानिंग नहीं रखेगा तो क्या कहे. मौला कितना रेम रेमी है यार, मौला कितनो रेम रेमी है. अच्छा तो मोला करो रेम रेमी करो है. अरे पा मरीविंदास तो मुखी दुआ मंग दे याद रेमान तो इस्माइल भाई जी रुहानी के असमने वासल करी ओ शो ठीक है. मैंने कहा इतना तुमको मौला की रहमत के ऊपर भरोसा है. तो बोले तो अलवाइज वो कैसी बात करता है, मौला की रहमत पे तो भरोसा हुए ने. मैंने कहा चलो ठीक है. मुखी बापा शाम को जमात खाने में बहुत दुआएं मांगते, उसमें 2-3 दुआ एक दूसरी आती है, सुनता है ना बराबर कभी जमात खाने. बोले हाँ अच्छा है, आशक आदमी है, सेवादारी है, फंड पढ़ा देने वाला है, बेईमान जैसा नहीं. मैंने कहा कि एक सेंटेंस मुखी साहब बोलते हैं रोज, या अलिया हजरीमान तो जुमला गत जमात के धंधे रोजी कमाणी में बरकत दीजिए. हम कहते हैं आमीन. या हजर इमाम तो जमले जमाती बीमारी बला के दूर करे, हम कहते हैं आमीन. तो मैंने कहा कि धंधे रोजी रोजगार कमाणी में मौला ये मुखी बोलते हैं और तेरे को मौला पे विश्वास है, तो फिर ये भाग भाग के 9 की ट्रेन पकड़ना ने बराबर 11 बजे दुकान का ताला खोलना ने, तो यार तू बैठे रहे ने मौला रेम रेमी, ऑटोमेटिक वो ग्राहक आते जाएंगे ने, चेक जमा होते जाएंगे ने, बैंक बैलेंस बढ़ती जाएंगी ने. तो मेरे को कहता है दीवारों कठिन जो ऐसा जो. मैंने कहा मुखी बीमारी भी दूर करने की दुआ मंगेता तो बीमार पे तो दवा कुले खाए. मौला रेम रेमी है तो यहां रहमत नहीं, राइट, और वहां रहमत के मोला बोल रे कि पढ़ो ना पढ़ो वांदा पूछी जा खुदा की रहमत चल. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैंने हर वाइज में कहा है, मैंने डालस की दोनों वाइज में कहा, हर टूर में कहता हूं. ये बच्चे मेरे को आज लेके आए यहां, एक बच्चा वहां से ह्यूस्टन से लाया डालस, ठीक है. ये अजीज भाई वगैरह जितने भी खिदमतगार हैं, ये वॉलंटियर्स खड़े हैं, ये बगैर तनख्वाह के, तनख्वाह नहीं लेते, पगार नहीं लेते, ऑनर है. आप आए हैं, आज वीकडेज है, बिजी होते हैं मुझे पता है, तो भी आप आए. क्यों आए, आपको मोहब्बत है मौला से, राइट. ये जमात खाना बनाने के लिए भी आपने कुछ डोनेशन दिया होगा, कुछ भी नजराना दिया होगा मौला को. इस सब का बदला मौला देता है, मौला देता है. स्वामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार, स्वामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार. स्वामी ने आलसो एक बार तो स्वामी आलसे 100 बार, क्यों किसका बोझ नहीं रखता है. तुम उसके लिए थोड़ा करोगे नहीं, वो तुम्हारे लिए 1000 गुना करेगा. लेकिन ये सब चीज का क्या है, रोजी में बरकत, धंधे में बरकत, कुटुंब में सुख शांति, तुम्हारी औलाद अच्छी होवे, तुम्हारी कई मुश्किलें दूर होवे, ठीक है. लेकिन रूहानी तरक्की, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के दिन और दुनिया का बैलेंस, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, दिल की शांति, मन की शांति. कभी खुदा न खास्ता तकलीफ आवे, मुश्किल आवे तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत, इन सब चीज के लिए तो इसकी बहुत जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है. इसके लिए मैं 3 फरमान पढ़ा और 3 फरमान में एक चीज रिपीटेडली है, क्योंकि तुम्हारे में रूह है,
क्योंकि तुम्हारे लिए एक स्पिरिचुअल लाइफ है, तुम्हारे लिए एक रूहानी जिंदगी है। इसके लिए हम कहते हैं कि जमात खाना दुआ बंदगी में हाजिर हो। नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत बिजी हैं, और लेकिन 7 बजे का 7:30 का टाइम है। यहां एक अलार्म बजनी चाहिए दिल के अंदर, ये मौला देख स्टोर के अंदर बिजी हूं मौला, मैन पावर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है मौला, मैं यहां एक तस्वीर निकाल लेता हूं, मैं यहां एक तस्वीर निकाल लेता हूं। हो सकेगा तो सुबह जमात खाने पहुंचूंगा या घर में उठ के दुआ बंदी करूंगा, शुक्राना अदा करेगा, तौबा अदा करेगा, रात को सोने के पहले दुआ पढ़ लेगा, और उसको फैसिलिटीज होगी तो आएगा जमात खाने, शाम को आएगा, शुक्राने का एक सिजदा अदा करेगा। लेकिन अपने आप से कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने आप से गैर समझ खड़ी मत करो कि ये इन सब चीजों का कोई रिश्ता नहीं है हमारी आखिरत के साथ। ये हर चीज का रिश्ता है। जमात खाने आते हो उसका रिश्ता मेरी आखिरत के साथ, मेरी रूह के साथ है। और ये जब फिजिकल लाइफ जब हमारी पूरी होगी ना, और इसमें से रूह निकलेगा ना, उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। और एक बात कह दूं कि मैं आपको डराता नहीं हूं, हाँ, तो आप बोलेंगे बाप रे यार, मिस्त्री तो आज बहुत अपने को बुलाया, बहुत डराया, कल से तो कुछ भी करने का है। डर के धर्म नहीं पाते, लेकिन रियलिटी है ना, उसको एक्सेप्ट करो और सोचो उसके ऊपर। एक मैं रिकॉर्डिंग होती है तो नाम नहीं देता हूं, एक खुदा की रहमत पे पहुंचे, अमेरिकन कंपनी के अंदर उनका जॉब था, बॉम्बे के अंदर अमेरिकन एक फर्म के अंदर, बहुत अच्छी पोस्ट थी, हाईली क्वालिफाइड, अच्छे खिदमतगार थे। और वो सब इंस्टीट्यूशन को बोल के रखे थे कि भाई मेरे पास बहुत टाइम रहता है, आपको किधर भी मेरी खिदमत की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो कभी वो तरीका बोर्ड में आते थे, कभी फिर काउंसिल वाले बुलावे, कुछ भी ड्राफ्ट कराना हो कि कोई चीज का ट्रांसलेशन कराना हो। एक दिन मैं बारगांव से आया और वो तरीका बोर्ड में आए और मेरे टेबल के पास से निकले। मुझे यारी मत अलवाइज वो रेस्ट रूम में गए, वहां से वापस आए और मेरे टेबल के पास चेयर थी, वहां बैठे। मुझे कहते अलवाइज कहाँ थे, दिखते नहीं थे। मैंने कहा टूर के ऊपर था। उस जमाने में 2-2, 3-3 महीने हम लोग रहते थे टूर के ऊपर। तो मुझे कहते यार जरा बताओ तो सही, क्या करते तुम लोग वहां जाके, थोड़ा एक्सपीरियंस से बताओ। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ऐसा हम जावे, 4 दिन रेवे, ऐसा वाइस करे, सब बातें बताई। फिर चांद रात का दिन था, मैंने कहा यार 5 मिनट बाकी, आज चांद रात है, जमात खाने जाना है, चलो आप भी आते ना। अब तरीका उसके ऊपर जमात खाना है करीम और का। तो मुझे कहता है जमात खाने नहीं जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं, 2 मेरी चांद रात है ना, ट्रेन में गई, मेरी छट्टा भी दलाना है बख्शामी का। बोले छट्टा नहीं दलाएंगे तो क्या होगा। इतने इनोसेंटली पूछता है। बहुत टाइम है ना अज्ञानता होती है, ला इल्मियत होती है, नॉलेज नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन यार। तो मिशनरी, इसका सेंटेंस सुनो, ये सब है ना चीजें, ये जमात खाना आने, ये छाता दलाना आने, तो तकसीदार करना आने, ये सब मजहब को चलाने के लिए से धर्म लाइव रहता है, हयात रहता है। तो ये सब चीजें नहीं होवे तो क्या होवे, अपने दिल कुछ होवे नहीं, मजा नहीं आवे। जिसके लिए जमात खाना रखा ने, ऐसा दुआ रखी ने, बहुत इनोसेंटली बोलता था। मैंने कहा यार चलो टाइम हो गया, आज तो चलते। बोले हाँ आज तो मैं भी आ रहा हूं, चलो। ऊपर गए, दुआ पड़े, नीचे आए। मैंने कहा थोड़ा टाइम देते मेरे को। मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप क्वालिफाइड हैं, आप मौला के आशिक भी हैं, खादिम भी है, खिदमत भी करते, लेकिन ये जो आपकी थिंकिंग है ना कि ये सब धर्म को, रिलीजन को चलाने के लिए राइट्स एंड रिचुअल्स रखने में आए हैं,
ये आपका थिंकिंग चेंज कर दो। बोले देखूंगा मैं, बट मैं कुछ ऐसा रेगुलर नहीं हूं। ठीक है चले गए, कभी बोले पढ़ लिए, कभी मन में आया तो दुआ पढ़ लिए। 2 साल के बाद मेरे घर पे फोन आया, हेलो अलवा बाबुल, मैं फलाना फलाना, आपको टाइम है मेरे घर पे आने का? मैंने कहा ठीक है। उसका टाइम दिया, अपॉइंटमेंट लिया, उसके घर पे मैं गया। याली मौलाली चाय पानी हुआ तो मुझे कहता है, याद है तुमको 2 साल पहले मैं तरीका बोर्ड में से निकला, बैठा था और अपन बातचीत करे थे रिलीजन के बारे में? मैंने कहा बिल्कुल याद है। तो क्यों, क्या है? तो कहते हैं तुमको पता चला मेरा बाईपास हो गया है? मैंने कहा सुना था ऐसा कुछ उड़ती उड़ती बात। बोले मेरा बाईपास हो गया है, नाउ आई एम ऑलराइट, शुक्र है मौला का। लेकिन अदरवाइज तुमको मैंने इसके लिए बुलाया है कि उस दिन मैंने एक सेंटेंस कहा था तुमको। मैंने कहा क्या सेंटेंस कहा था? बोले मैंने ऐसा कहा था ना, ये सब रिलीजन को चलाने के लिए है, ये दुआ ने, बंदगी ने, जमात खाने, बाग बाग के लिए। और आई एम नॉट प्लेइंग विथ योर इमोशन। उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं। मैंने मौला की माफी तो मांग ली, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं। ये मजहब को चलाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे रूह को ताकत देने के लिए, मुझे बोलता है हमारे रूह को एनर्जी देने के लिए। मैंने आस्ते से पूछा, तुमको बाईपास सर्जरी के वक्त कोई एक्सपीरियंस हुआ? तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मेरा और याली बापा का सीक्रेट है। लेकिन मैं बहुत दुआ किया हूं मौला के पास, और मैं अभी रेगुलर हो गया हूं। बने तब तक जमात खाने पहुंचता हूं, नहीं जा सकता हूं, मैं जहां भी होता हूं अपनी दुआ, बंदी, इबादत को अदा कर लेता हूं। 49 इयर्स की एज में वो खुदा की रहमत पे पहुंचा है, यंग एज थी। इसके बच्चे भी सुखी है, शुक्र मौला का। कि मकसद कहने का क्या है पता है? कभी भी ऐसा ख्याल मत करो कि इसका कोई मकसद नहीं है, पढ़ू तो चले, नहीं पढ़ू तो नहीं चले। हजरत इमाम के साथ झंझोड़ते हैं। मैंने 5 पाठ दिए। ए वीरा मारा भाई, जागो रिखीसर मोरा रे भाई, तमे गाफल हो क्यों सूता? सोवेंगे सोई रोवेंगे। कि आया है हाजिर इमाम का पोस्टमैन तुमको पोस्ट पहुंचाने को, उसका मैसेज पहुंचाने को, ठीक है? मारा रूहानियतना फरमानने ધ્યાનમાં નહીં લ્યો અને એક કાનથી સાંભળીને બીજા કાનથી કાઢી મૂકશો તો આખરતમાં પછતાશો. સુલતાન ઉષા का फर्म. सोवेंगे सोही रोवेंगे, गुरनर कहेत पुकार, जुगा जुग गुरनर कहते रे आए, तमे जिक्र करो मोरा भाई. जुगा जुग से कहते आया है, जुगा जुग से. हाजिर इमाम भी कहता है, When you are free, तुम्हारे खींचे में तस्बीह है, तुम्हारी पर्स में तस्बीह है, कोई न कोई नाम की याद में रहो. से या अल्लाह, से या अली, से या मोहम्मद, से या इमाम ज़मान. ये टॉनिक है, ये विटामिन्स है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है. दुनिया में भी हमको संभाल के रखता है, और जब आखिरत का वक्त आता है न, तब भी हमको संभाल के रखता है. मैंने 95 की विजिट में, मेरी ऑफिशियल टूर थी, तब डलास के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर तकरीबन 4-5 वाइज में मैंने एक दलील दी थी, और आपने कोई कैसेट में सुना भी होगा. मैंने क्या दलील दी थी कि एक डॉक्टर था ना, रिटायर्ड डॉक्टर, 80 बरस का, रिटायर्ड हो गया था. उसके फैमिली में औरत मर गई थी, एक बेटा था, जवान बेटा था, एक पढ़ा नहीं था, खाली 12th तक किया था, ग्रेजुएट नहीं हुआ था. ठीक है, एक दलील है, एक थिंकर ने लिखा है, गुजराती में बोलते हैं चिंतक, फिलोसोफर. उसने एक बुक गुजराती में लिखी है, उसमें एग्जाम्पल दिया है. फिर और डॉक्टर को लगा कि अभी मैं ज्यादा जीऊंगा नहीं, तो बोले मेरा विल बना लो. तो उसने लॉयर को बुलाया,
लॉयर को बुला के बिठाया और लॉयर को कहता है बिल बना ना मेरा, ये सब मेरी इतनी बहुत मिलकत, माल मिलकत सब, और सब बिल तैयार होता है। मेरी बैंक बैलेंस इतनी है, इतना फंड जो है वो ट्रस्ट में देना, ये फलानी हॉस्पिटल में इधर, और इतना मेरे लड़के को। मेरी कार है दोनों कार मेरे लड़के के नाम। मेरी ज्वेलरी है, दागिने वगैरह है, वो सब मेरे लड़के के नाम। एक एक चीज, ये मेरा हाउस जो है वो मेरे बेटे को देना। और फिर एंड में वो जो ऑथर है वो लिखता है कि डॉक्टर ऐसा बोलता है कि मेरी एमएस की, मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री है ना, मेरा बेटा पढ़ा नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, तो इसको भी मैं दे के जाता हूं, बेचारे को काम आएंगी मेरे मौत के बाद। काम आवे नहीं आवे ना? कितनी सिंपल दलील है। और लॉयर लिख के भी जावे चलो, मगर खाली है, तो डिग्री तो कमानी पड़े ना। तो मौत के बाद जो है ना, कुछ चीजें मिले हमको, कुछ चीजें मिले, लेकिन हमारी दुआ, बंदगी, इबादत, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, वो तो हमको हमारी हयाती में कमाना पड़ेगा, और बाकी रहेगा तो वहां करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी रहेगा तो वहां कमाना पड़ेगा। इतनी सिंपल दलील को समझ जाओ, इतनी सिंपल दलील को समझ जाओ। मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह आज वहां बहुत अच्छी जमात है, बड़ी जमात है, जमात खाना बन गया है। पहले सिर्फ 2 घर थे, बस ये वेको के टाइप का। अभी इतने जमात है तुम्हारे जितने, पहले सिर्फ 2 घर थे, तब भी हम लोग जाते थे। और सुल्तान मूसा का हुक्म था कि जमात खाना है वो 3-3 बरस एक फैमिली के घर में रहे, फिर 3 बरस के बाद दूसरी फैमिली के घर, और जो फैमिली के घर में जमात खाना रहे वो मुखी बने। ये सुल्तान मूसा का हुक्म था। और जब सुल्तान मूसा आवे ने, तो दोनों फैमिली बॉम्बे में आवे और मेहमानी रखे जमात की तरफ। ऐसे एक टाइम सरकार सुल्तान मूसा आए, फिरते फिरते मेहमानी में आए। किसका मेहमानी है? सरकार बेलगाम जमात का, महाराष्ट्र में हो, बहुत खाना बता। किसके घर में जमात खाना है? तो जिसके घर में जमात खाना, तो सरकार हमारे घर में। अच्छा, सब बराबर चलता है जमात खाना? हाँ, बराबर चलता। अच्छा, मुखी तुम है अभी? हाँ। आप कामड़िया है? हाँ खुदा, हम कामड़िया। अच्छा, देखो बहुत जमात बढ़ेगा और जमात खाना बनेगा। सुल्तान मूसा कहते बहुत जमात बढ़ेगा और जमात खाना बनेगा। फिर मौला पूछते हैं, मुखी जमात खाना तुम्हारे घर में है, जमात खाने जाते हो? अब ये बात उनके घर में जमात खाना था, और मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। मैंने वाइफ के बाद डिनर किए, और डिनर करते करते मैंने क्वेश्चन करा कि मुखी साहब आप बहुत पंक्चुअल है, 4 दिन का मुकाम था मेरा, कि 3:15 साढ़े 3 नहीं होते और आप मेरा रूम नॉक करते, चलो उठो बंदगी के लिए। बिल्कुल, आप रात को 1 बजे सोए तो भी। तो मुझे कहते मिशनरी मैं ऐसा नहीं था। और फिर मेरे को पूरा वाक्य सुना कि जो चेंज केम थयो, टर्निंग पॉइंट क्या आ गयो कि मने पूछे छे कि बराबर जमात खाने संभालता है तेरे घर में है? तो कि खुदा भी चांद रात को जाता है घर में जमात खाना, चांद रात को जाता है। अच्छा, इतना इनोसेंटली बात करता था, इतना, मुझे तो बातून पता नहीं, लेकिन इतना साफ दिल का लगता था। मौला कहता है आप बैतुल ख्याल में है? हाँ। बोल लिया है इसमें? हाँ लिया। तो सुबह बंदगी करने तो उठता होगा ना, जमात खाना तुम्हारे घर में है ना? तो कहता है खुदा कभी बरस में एक टाइम आंख खुल गए तो उठता है, बरस में एक टाइम। तो मौला सुल्तान हंसा, मुझे बोलते हैं कि हंसिया मौला ने, પછી મને કહે છે તું કરતા क्या है? तो 24 कलाक पसार कैसा करता है?
تو کہتا ہے سرکار 8 کلاک بزنس کرتا ہوں. اچھا, پھر 8-9 کلاک سوتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر تھوڑا گارڈن میں جاتا ہوں واک کرنے. پھر کیا کرتا ہے؟ ایسا گناتے آتے, سلطانوں سے ایسا آورس گنتے آتے, اور لاسٹ 24 آورس پورا ہوا. مولا نے گنا 8 کلاک سوتا, بزنس کرتا ہے, 9 کلاک سوتا ہے, 2-4 کلاک گھومتا ہے, اور ایسا کرتا ہے. یہ تو 24 کلاک پورا ہو گیا. اور پھر مجھے کہتا ہے کہ ماں باپ اٹھیا અને મારા ખભા પર હાથ માર્યો. મુખી મરના નહીં है, खुदा को जवाब नहीं देना है, खुदा को जवाब नहीं देना है. मुखी होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ. એટલે આ ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવ્યો. एक का सेंटेंस, मरना नहीं है, तुम्हारे हर एक के लिए एक दूसरी जिंदगी है जो इटर्नल है, जो अबदी है, जो हमेशा के लिए रहने वाली है. मौला कहता है, और उसकी तैयारी करने के लिए हम तुम्हें फरमाते हैं, अपनी दुआ के अंदर, अपनी इबादत के अंदर, अपने अमाल के अंदर बराबर रहो. मैं आपको बताते जाता हूँ कि नुकसान कहाँ 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 हमको उठाना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम समझ जाए. न भी पहुंच सके, एटलीस्ट सुल्तान मूसा ने फरमाया, दुआ नहीं आती हुए तो 3 तस्बीह निकालें. क्यों कहा? दुआ नहीं आती हुए 3 तस्बीह या अली या मोहम्मद की निकालो, एक दुआ के लिए, फिर दूसरी दुआ की 3 तस्बीह या अली. अगर नहीं आती है तो दुआ आती है तो दुआ पढ़ो. क्यों कहा? देयर इज समथिंग, कुछ है, बराबर है. और मैं आपको सुल्तान मूसा के फरमान नहीं, करीम शाह के फरमान देता हूं कि हाजिर इमाम ने फरमाया कि यहां तुमने तैयारी की होगी और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आएंगे तो अच्छी तरह तैयार हो. वर्डिंग है मौला की. वास्ते हम तुमको फरमाते हैं कि अभी तुम्हारे हाथ में टाइम है, तुम दूसरी दुनिया की तैयारी करो, तुम दूसरी दुनिया की भी तैयारी करो. और इसको कहते हैं बैलेंस. यहां भी पैसे वाले बनो, यहां भी अच्छे मकान रखो, यहां भी अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी तरह रहो, और साइड बाय साइड साथ के अंदर वहां के लिए भी अच्छा मकान की तैयारी करो, अच्छे स्पिरिचुअल फूड की तैयारी करो, स्पिरिचुअल लिबास की तैयारी करो, और फिर एंड के अंदर या हजर इमाम की रूहानी के असल मुबारक के अंदर वासल करें. सीधा कि ये जिस्म के अंदर से निकला, ये मौला के इसके अंदर पहुंच गया. आप कभी नहीं, बॉम्बे में है, फर्नीचर की दुकान है उसकी, भिंडी बाजार से लेके क्रॉफर्ड मार्केट के बीच में 2 गाली की उसकी बड़ी दुकान है. आशिक है मौला का. लास्ट ईयर मेरी बेटे की शादी के लिए कुछ फर्नीचर लेना था मुझे, तो मैं उनकी दुकान पे गया. याली मदद, मौलाली मदद, सब जो लेना था ले लिया. तो मुझे कहते अलवाइस बैठो ना थोड़ी देर चाय पानी. बैठा मैं. मुझे कहते बहुत टाइम से हमारे जमात खाने में नहीं है वायस करने को. मैंने कहा नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आऊंगा. और ये आदमी जब भी मैं वहां जाऊं, सुबह 7 में जाऊं कि शाम को जाऊं, उसकी मैंने खाली ऐसा कहा कि माशाल्लाह आप बहुत रेगुलर हैं जमात खाने के, और मंडली के भी मुखी रह चुके, फिर जमात के कामड़िया भी रह चुके. उन्होंने मुझे कहा कि मिशनरी एक बनाओ, ऐसा बना. मेरे बाप के साथ मेरा झगड़ा हुआ when I was young. मैं थोड़ा नाराज हो के चले गया कराची, कभी 64 में, हाजिर इमाम की पदरा में. मेरा ग्रैंडफादर नाना बापा राय हुसैन भाई वहां रहे. मेरी माँ ने फोन किया कि ये लड़का उधर आ गया है, पापा तुम संभालना उसको, झगड़ा करके आ गया है. झगड़ा बिजनेस के बारे में हुआ था कि ये बिजनेस तेरे को नहीं करना है वगैरह. मेहमानी लिखा है गार्डन जमात खाने में.
मुझे कहता है 11:30 बजे हमारा टर्न आया मेहमानी का रात को, और बोले मेहमानी के अंदर आए मेरे नाना पापा के साथ। सुल्तान शाह करीम ने देखा मेरे पापा को। हाजिर इमाम पूछते हैं हुसैन अली हाउ आर यू, खुदावंद तेरी दुआ है। इसको दुआशीष दिए, खुदावंद ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मेरी बेटी का लड़का है। बोले जैसा मेरा इंट्रोडक्शन कराए ना, तो हाजिर इमाम कहते कम नहीं, नजदीक आ। मैं नजदीक गया, मुझे पूछते हैं यू आर गोइंग रेगुलरली जमात खाना, कि तुम रेगुलरली जमात खाने जाते हो? तो मुझे कहता है अलवाइज मौला पे ईमान विमान सब था, लेकिन हम तो बोल दिया यस खुदावंद थ्राइस इन अ ईयर। और फिर वो कहता है खुदावंद 11 जुलाई 13 दिसंबर एंड 21 मार्च आई एम गोइंग जमात। मेरे पूछता है हाजिर इमाम भी थोड़ा उसे अच्छा बंदा मिला है मेरे को। हाजिर इमाम पूछते हैं दसों देता है, 10 देता है? खुदाई नहीं। बोले उस टाइम पे तो मैं पढ़ता भी था, ने दुकान पे भी बैठता था, ने पॉकेट एक्सपेंस मिलता था ने। और अभी तक हाजिर इमाम क्या फरमाते हैं, आप बंबई में आएंगे तो मिला दूंगा, अभी नाम ने कुछ नहीं देता हूं, उसकी दुकान का भी नाम दूंगा आपको। हाजिर इमाम फरमाते हैं एटलीस्ट वंस इन अ मंथ चांद रात को जाएंगे जमात खाने? यस खुदा। फिर आ जाओ कहते तेरे को चांद रात के अलावा भी कभी दिल हो तो जाना, नहीं तो पकड़ लेंगे वापस। राइट? हाजिर माने का बरस में 3 टाइम जाता है, तो 1 महीने में 1 टाइम तो शुरू करा उसको। तो बोला कहते वंस इन अ मंथ चांद रात को देंगे? यस खुदा। रोज का 2 रुपया 10 देंगे? यस खुदा। बहुत खाना होता, बहुत दुआ આપણે તો ચાલ્યા, हम तो हलियो बोले। और फिर नाना पापा समझाया और हाजिर इमाम फरमाए फिर मौला कहेगा या मेरे को कभी बोल दिया कि भाई अभी बस, मगर एवरी मंथ मैं 20,000 दसुन देता हूं। मेरे इनकम के हिसाब से 20,000 दसुन देता हूं, और ये 2 रुपया में एक्स्ट्रा देता हूं जो मुझे मौला ने कहा था, उससे शुरुआत है। विष्णु साहब बहुत सुख है, बहुत सुकून है। तकलीफें आई गई, लेकिन गिरा खड़ा हुआ, वापस गिरा वापस खड़ा हुआ, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। एक ये चीज ने बोले मेरे को संभाला है। ये सब दाखिले दलील है दिन का, ये सब दाखिले इसके लिए कि वाइज है ना, वाइज वो एक हॉली वाटर है। नहीं तो आप सब जानते हैं कि क्या बोलने वाले वे अलवाइज लोग, जमात खाने वाले, दुआ पढ़ो ने, राइट? ठीक है, मगर वो धूल मट्टी चढ़ जाए ने और बारिश पड़े तो वापस थोड़ी ग्रीनरी आ जाए। ऐसे हॉली वाटर पड़े हमारे रूह के ऊपर, पाक पानी इलम का जो पानी पड़े तो थोड़ी गफलत दिए हुए दूर हो जावे, सुस्ती हुए दूर हो जावे कि नहीं नहीं बाबा दोनों को संभालना है, दीन को भी संभालना है, दुआ को भी संभालना। ठीक है। अब दूसरा असर कहां होता है देखो, वो आखिरी बात बता के मैं आस्ते आस्ते वायस बंद करूं। दुआ बंदी की कचास, इबादत की कचास हमको कहां लेके जाती है? ऐसे तो काफी नुकसान है। मैं फर्स्ट टाइम पोर्चुगल गया ना, लिस्बन, तो लिस्बन से 4-5 कलाक का एक विलेज है, सिटी है छोटा, मुझे उसका नाम मैं भूल गया हूं। वहां एक बुजुर्ग है, उसका बेटा मुखी था। जमात खाने में वाइस बहस करके हम लोग आए और उनके घर पे सब उतारा ने खाना पीना था। मुझे एक पेपर दिए उन्होंने जेरोक्स करके, और उस पे गुजराती में लिखा था वमिन शर्रिन हासिदिन इजा हसद, अने पना मांग हसद थी अने हसद करनाराओथी। यह आयत है कुरान की जो ज़ारत में अपन बोलते हैं, वमिन शर्रिन हासिदिन इजा हसद। मुझे कहता है अलवाइस पीर सब्जाली आए थे मेरे पास इधर अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में पीर सब्जाली आए थे और मेरे को ये लिख के दिए कि मुखी तुम्हें न ये हमेशा पढ़ा करो,
राइट। और मुझे कहते हैं कि मैं 2 जगह पे मुखी रह चुका हूं, अफ्रीका माडागास्कर में भी और मैं पेरिस के अंदर भी मुखी रह चुका हूं। बोले अभी फिर हम लोग यहाँ मूव हो गए पोर्चुगल के अंदर, अभी मेरा बेटा मुखी है। मुझे कहता है कि जब मैं अफ्रीका में मुखी था और करीम हाजिर इमाम की पधरावनी और उतारा मेरे घर पे रखने में आया था, जैसे आपको याद होगा 64 में कहां थे हाजिर इमाम? वजीर फैंसी के बगल। इस तरीके से हाजिर इमाम इनके घर पे ठहरे, मुझे बोले मेरे घर पे। हाजिर इमाम का ऊपर अच्छा स्पेशल सब बनाए, काउंसिल देख के सब कैसा अरेंजमेंट है। फर्स्ट दीदार देके और हाजिर इमाम आए बंगले के ऊपर। मैं हाजिर इमाम के साथ में हूं पीछे। हाजिर इमाम अपने जो रूम जो था उसके अंदर दाखिल हुए। मैं हाथ बांध के खड़ा रहा पीछे। मुझे हाजिर इमाम के कम इंसान, मैं अंदर गया। बोला कहते बैठ, और फिर हाजिर इमाम फरमाते तो एक आयत कुरान की सुने हो आप? बोले हाँ, कौन सी खुदा में? और हाजिर इमाम ये आयत बोलते हैं, वमिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद। बोला कि वमिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद। हाँ खुदाविन, कुछ टाइम पहले फिर सब्जाली आए थे, जब वो आयात थे और मेरे को लिख के दिए थे। हाजिर इमाम फरमाते हैं मैं अभी दीदार देख के आया, मेरे को कुछ वाइब्रेशन मिले हाजिर इमाम। करीम शक, क्या वाइब्रेशन? मुझे ऐसा लगा मुखी जमात में हसद बहुत बढ़ गया है। क्या कहते हैं? जमात में हसद बहुत बढ़ गया है। और फिर बोले हाजिर इमाम कहते हैं शायद दुआ बंदगी कम हो गई है, दुआ बंदगी कम हो गई। बोले हाजिर इमाम खुद का ऐसा दुखड़ा मेरे पास रजू किए। मैंने कहा मौला माफ करना, मैं जमात को समझाऊंगा, दुआ बंदगी कम, बहुत खाना बदान। हम नाराज नहीं हैं, मगर हमको ऐसा लगा वाइब्रेशन मिलते हमारे, ठीक है। और ये चीज सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1956 वफात होने के पहले एक फरमान भेजे शाह करीम हाजिर इमाम और अमीन मोहम्मद के थ्रू। उसके बाद तकरीबन कोई फरमान नहीं आया। ताली के आए थे 10 जुलाई तक ताली के आए थे, लेकिन लास्ट फरमान सुल्तान मोहम्मद शाह ने भेजा और वो फरमान के अंदर ये वर्डिंग है, देखो सुल्तान मोहम्मद शाह हाजिर इमाम पढ़ते हैं फरमान कि मारा वाहला दादा जानना वाहला मुरीदो। હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું છે કે આજે આ દુનિયામાં સૌ જંજાળમાં પડેલા છે અને સારા અથવા ખરાબ રસ્તે સુખમય જીવન જીવવાની શોધમાં છે, સર્ચમાં છે। પણ મારા દાદાએ કહ્યું છે કે રિયલ સુખ, સાચું સુખ અને હેપીનેસનો એક જ રસ્તો છે કે તમે દુઆબંધી કરો, તમે દુઆબંધી કરો। મારા દાદાએ ફરમાવ્યું છે in your business, વેપારમાં, and in your personal lifeમાં સક્સેસ થવા માટે, તમારા અંગત જીવનમાં સફળ થવા માટે અને તકલીફોનો સામનો કરવા માટે એક જ વે છે, રસ્તો છે। મારા દાદાએ કહ્યું છે દુઆબંધી કરો, દુઆબંધી। મારા દાદાએ ફરમાવ્યું છે ભાઈઓની માફક રહેજો। હસદ અને અદેખાઈ થી ક્યારે પણ સક્સેસ નહીં થાઓ। લાસ્ટ ફરમાન સુલ્તાન મૂસા કા, હસદ અને અદેખાઈથી ક્યારે પણ સક્સેસ નહીં થાઓ, પણ એનું પરિણામ હંમેશા હાર્મફુલ હશે, દુઃખદાયક હશે, નુકસાનકારક હશે। મારા દાદાએ ફરમાવ્યું છે કે બચ્ચાઓને સ્પોર્ટ્સમાં રસ લેતા કરજો, એ લોકો સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ લે, બચ્ચાઓને સારું એજ્યુકેશન આપજો અને રિલિજન સ્કૂલની અંદર એ લોકોને બરાબર મોકલજો। મારા દાદાએ ફરમાવ્યું છે કે 3 ટાઈમની દુઆ બધા સાથે મળીને પઢજો અને તમારી અંદર યુનિટી અને એકતા રાખજો, તો હંમેશા તમે સુખી થશો। મારા દાદાએ ઘણા ઘણા દુઆશીષ તમને મોકલ્યા છે। ખાનાવદાન ખાનાવદાન સલવાત પર મોડા। એ લાસ્ટ મેસેજ સુલ્તાન મુશક
اب اس کو جوائن کہاں کرتا ہوں؟ دیکھو 56 11 جولائی 1957 حاضر امام گادی پہ آئے اور پہلا فرمان کیا ہوا؟ پہلا فرمان 1957 આત્મા માટે બંદગી, શરીર માટે એક્સરસાઇઝ એન્ડ યુનિટી. जो मैसेज छोड़ के सुल्तान महमूद शाह गए, हाजिर इमाम वो मैसेज जमात को वापस सुने कि शरीर के लिए एक्सरसाइज, रूह के लिए बंदगी और यूनिटी, ये 3 चीज तुम्हारे साथ में होगी, दीन और दुनिया दोनों के अंदर तुम आबाद रहो. और माशाअल्लाह हमारे अंदर है, नहीं है ऐसे नहीं. और ये यूनिटी है तभी तो ये जमात खाना बना है. ठीक है, यूनिटी है तभी तो हमारा सब काम होता है. लेकिन इंसान है ना, हम इंसान हैं, हम खता के गलतियों के घर है. और मैं तो 38 बरस से फिरता हूं जमात के अंदर. ठीक है, लास्ट ईयर 2000 में मैं आया था और मैंने ये बात यहाँ डालस में बताई थी. मुझे एक बच्चा मिला आफ्टर माई वाइस, बिलीव मी, मुझे पहले तो बोले मुझे को कुछ पूछना है. बोले पूछ, क्या है? तो रोने लगा. 28-29 बरस का था, लिटरली रोने लगा. अच्छा वो बोले नहीं, डुस्का पड़े. अरे बेटा क्या है? तो बोलते कि मैं कैसे बोलूं? बोले क्या है बोल. तो बोलता है अलवाइज मेरे को जलसी बहुत होती है. क्या कहता है? जलसी, अदेखा, ईर्ष्या बहुत. बोले ईर्ष्या क्यों होती है तेरे को? मैं करीम शाह के घर में खड़ा, मुझे बोलता है मैं है ना कोई देख नहीं सकूं, कोई आगे बढ़ता हो तो मेरे को बड़ा तरह से बोलो कि मारा से आगे बढ़ी. अरे अरे बच्चा ये कैसी बात करता है तू? बोले मैं सच कहता हूं, मेरे में ये चीज बहुत है. सर्च कर, तपास कर, गिरियाजरी कम करता है, दुआ बंदी में कचास है, अस्तगफिरुल्लाह की तस्वीर नहीं निकालता है, सलवात की तस्वीर नहीं निकालता है, तौबा कर मौला के पास. फिर मैंने समझाया तेरे ईर्ष्या करने से कोई रुक गया? तरक्की करने से? तेरे जलसी करने से कोई रुक गया? बोले नहीं, करा ना वो. ठीक है, फिर मैंने इसको एक आयत सुने. देख अल्लाह ने फरमाया है, कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी रोजी को कुशादा करे, और कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी रोजी को तंग करे? हम रोजी देने वाले हैं. बोले वो रोजी दे जिसकी किस्मत में जो होगा, जो मेहनत करेगा. कि तेरी जलसी और हसद करने से तुझे नुकसान होगा बेटा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, छोड़ दे और भूल जाए सब. और दुआ मांग के मौला तो सबको आगे बढ़ा, कि मेरे को आगे बढ़ा है ना, ऐसे सबको आगे बढ़ा. लेकिन देख कभी भी कंपटीशन नहीं कर. समझा बेचारा. फिर वापस मेरे को नहीं मिला है, मैंने तो उसका नाम था पूछने में भूल गया. और मैं जब भी मेरे कोई इंसिडेंट बोलता है तो मैं तुरंत मेरा टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता हूं. मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तेरी बात. यानी ये इंसान के अंदर एक कमजोरी है जिंदा. ठीक है, लेकिन मैंने तो यहाँ देखा कि माशाल्लाह सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सब आगे बढ़ते हैं. और ये मौला का फरमान है कि जैसे तुम पैसे वाले बने हो तो तुम विचार करो कि तुम्हारा पैसा दूसरे को कैसे काम, तुम दूसरे को कैसे काम आ सकते हैं. और जैसे तुम आगे बढ़े ऐसे तुम ये भी सोचो कि मेरा दीन भाई कैसे आगे बढ़ सकता है. तो ये जमात खाना, दुआ, बंदगी, यूनिटी हमारी, ये हमारी रूह का खुराक है. मौला आपको सबको सुखी, सलामत और आबाद रखे. या मौला हकीकत की समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, नाफरमान के काम से बचाना, जाहिर बातों गुनाहों को माफ करना, जल्द आके तेरे जाहिरी और बंदी के अंदर बातों में दीदार नसीब करना. गुरगत जमात के है जिंदा सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. आमीन.